वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ्रॉम स्टडी पियर्सन। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे अगले वीडियो का, जो रिप्रोडक्शन एंड एडोलेशन, जो चैप्टर 8 है क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का। हम लोग ने अगले पार्ट में प्रीवियस क्लास में ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज अब हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे आए हैं। अब फर्टिलाइजेशन टॉपिक पर अगर अब हम आए हैं तो फर्टिलाइजर्स फर्स्ट पहले पढ़ेंगे लोग। पहले ही जैसे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। देन वी हैव टू गो एंड डिस्कस दैट what the fertilization. Then we discussed that a process of fusion of male cell and the female cell is called fertilization. Means the male cell is sperm and the female cell is ovum or egg cell that fuse that involve that in the sperm cell entered the female body and fused with egg cell. That is called fertilization. That's I also written that the process of fusion of a sperm with egg cell is called fertilization. And there are two type of fertilization. One is the internal fertilization. Internal fertilization means the fertilization inside the female body. Means fertilization inside the female body. First of all, in your mind that the female body is, for example, the human being. In human being, the fertilization always occur in a female body, and cats, dogs, also any other mammals. Those are mammal that the fertilization in this the female body. Okay, and second one is external fertilization. In external fertilization, the fertilization outside the body. And when they say that the outside the body, we again go to the topic of asexual. In asexual, the first example is aquatic animal are a best example of the external fertilization. First one is fish and frog, etc. and any aquatic animal. Then और भी मैं आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर कराने के लिए मैं इसके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ फर्टिलाइजेशन का, कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जस्ट लाइक ये एक एग सेल है, ये बीच में ये एग सेल है, आप लोग जैसे जानते हैं एग सेल। ये एग सेल है जिसपे एक स्पर्म आ रहा है। देखिए फर्स्ट स्टेप स्पर्म आते हुए, फिर सेकंड स्टेप, फिर और क्लोज्ड, फिर सेकंड स्टेप टू टच द बाउंड्री ऑफ the outer layer of the egg cell, then enter the cytoplasm, that enter the cytoplasm of the egg cell, then enter the nucleus, and after entering the sperm in the nucleus, there is a fusion, the fusion of two nuclei. It is their nuclei because there are two nucleus called nuclei. One, the nucleus, plural form of nucleus is called nuclei, where the one nucleus of the egg cell and the second one is a sperm cell, and then the egg cell is that and the sperm cell is that. Then it fuse and form another nucleus called zygote. आप लोग इतना समझ गए। अब फिर हम दूसरा टॉपिक पाते हैं जो आप लोग आपने पढ़ा होगा, सेविपोरस और विविपोरस। सेविपोरस एंड विविपोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये टॉपिक ये फर्टिलाइजेशन में ही आता है कि ये दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन होते हैं दो तरह के, ओविपोरस और विविपोरस। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद अगले में मैं आपको पढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ इतना ही इरेज करता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज ओविपोरस। ओविपोरस विपोरस एनिमल। जैसे ही हम ओविपोरस एनिमल पे आते हैं कि जब इसका हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन अराइज करूंगा। ओविपोरस एनिमल ये है, एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स laying eggs. Example, first example is fish हो गया। अब हम आते हैं फिश हो गया, और एक्सेट्रा मीन्स फ्रॉग ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे ओविपोरस एनिमल है कि ये लेग एइंग एनिमल है जो एग देता है, मतलब अंडे देता है।
अंडे देता है, तो हम सीधे इस अगले पॉइंट, पहले वाले पार्ट 1 पे हम जाएंगे, जिसमें हमने पढ़ाया था कि those animal in those and the reproduction by only one parents is called asexual reproduction. That's example oviparous is an example of asexual reproduction. ये आप लोग ध्यान में रखिएगा. फिर आपको यहाँ ओविपोरस हो गया. फिर इसके बाद मैंने क्या बताने वाला हूँ, विविपोरस. सेकंड वन इज विविपोरस. अगेन आई इरेज दैट. द सेकंड वन इज विविपोरस. विविपोरस polus. Those animal birth young ones. एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग देख लेती है. तो अब किसी को जो भी अगर मतलब कि बेसिक चीज जो जानता होगा रिप्रोडक्शन वो भी बता सकता है कि दोज एनिमल आर बर्थ यंग वंस, उसको क्या कहते हैं, वो भी पढ़ा सर. वो फर्स्ट एग्जांपल आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आते हैं, हम आते हैं, एनिमल आते हैं. और दोज एनिमल हु गिव बर्थ बेबी यंग वन. फॉर एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स एंड डॉग. और मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि ये सेकंड थिंग था विविपोरस. Those animal birth young ones. First of all, young ones means it's a sexual reproduction, and the example is we also are a viviporous animal, because we all are born by the sexual reproduction, process of sexual reproduction. The first example is human beings, second is cow, dog, or etc. Or one is mammals are example of viviporous animal. And then I told you that the viviporous animal are also viviporous animal are also a internal fertilization, including internal fertilization. Okay, but it not important, but not मतलब कि ये इतना लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओविपोरस की ये एसेक्सुअल होना चाहिए, ये आप जरूरी मत रखिएगा. फिर हो गया. और अब हम इस पार्ट को इतना तक ही रहने देते हैं, और अगले पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे, और उसके पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे. और आज के लिए इतना ही ठीक है, और हैव ए नाइस डे. और आप इस